gentlemen, thank you so much for joining us again on another session of Therapy Session. Now, yes, in the past, I talked about how we are not psychiatrists, but I want to reaffirm again why we're doing this. See, I stumbled right there. That is the uniqueness of Therapy Session. It's live, it's raw, and at the same time, we also want to connect with people by sharing stories of ours and with also our invited guests. So please, if you want to, and see, look at that. Look at this. All of this cannot happen in a recorded session. Hair like that, Superman hair, can only happen in a live session. So that's why it's raw and uncut. We want people to come on and talk about their stories so that, in a way, when we talk with each other, we connect with each other. And when we do that, we feel less lonelier. And in a way, it's kind of like, yeah, therapy, if you think about it. So, with that mission, yes, I'm stumbling a lot today. What the hell has gone wrong with me? Anyway, with that mission, I'd like to introduce our team today. And as usual, Jaydeep and Pratyush. What up, guys? Hi. And a customary hello from our cheers mug. And today, we have very special guests with us. I've known them for quite some time, but at the same time, they're very accomplished people by themselves. I'll say no more. Please welcome Akhil and Nimit to the show. Guys, how are you doing? Hi. How are you doing, guys? That's Nimit, that's Hi. Akhil. Where's your mug, bro? Come on. That's the rule of the show. The only rule. Yeah, there you go. How you guys been doing? How's the lockdown been? Yes, lockdown is quite hard because the whole routine has changed a lot. What about you, Akhil? How's the lockdown been treating you? Has it been good? I think for me it's a normal life. I am living in a village, so I think there is no lockdown in the village. So it's a normal life. No, for me. everyone is The lockdown. living a normal life, but the routine has changed. So now the new normal is the new routine. So that's Akhil's background. He's living in a farm, like you said. But these two are unique in the sense they lived in, let's say, the busiest city and quite possibly the hardest city to live in India, Mumbai. Guys, talk about Mumbai. You were there for a year for your dissertation. Mumbai, the city of dreams, I guess. The city never So did you sleeps. accomplish any dreams there? Did you accomplish any dreams there? Yeah, we got our degree. That was one of the biggest dreams. એક કિસ્સા હતો કહો કે ક્યાંની તેની લાઈફ કેવી હતી કઈ રીતે જીવન વિચાર્યું કેટલા 6 મહિના હતા તમે લોકો Hey, we were for 1 year. 1 year. I think almost 1 year. So पहले मतलब शुरुआत ऐसे की थी कि यहाँ पे बैठ के सोचा था कि मुंबई जाना है. मतलब इनिशियली तो सोचा भी नहीं था कि मुंबई जाना है, पर कुछ भी करके मिल गया वहाँ एडमिशन IITs में और इसको बार्क में. फिर सोचा कि वहाँ इनिशियली मुंबई में एक बहुत बड़ा इश्यू है रहने का. वो जो भी मुंबई जाता है सबसे बड़ा इश्यू है, एक रहने का और दूसरा है ट्रैफिक. तो इनिशियली वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हाउस, but he only went to search for house in Mumbai while I was in Ahmedabad. So initially जब भी स्टार्ट किया हाउस सर्च करने के लिए, तो पहले तो उसने 2 BHK से शुरुआत की थी, पर पता पहले चला उसका IIT में हुआ था, मेरा BRC में था. तो मेरा BRC मुंबई के एंड पे आता है, चेंबूर से, नवी मुंबई से, और इसका आता है पवई में. तो ऐसा हमको लोकेशन चाहिए था कि बीच में हो, मतलब IIT भी सेम डिस्टेंस पे है और BRC भी. तो वो डिस्टेंस ढूंढने में, वो लोकेशन ढूंढने में बहुत टाइम. और हमारा सबसे बड़ा मिथ ये था कि हम मिडिल कोई सेंटर पॉइंट लेंगे और वहां से इसको 10-15 किलोमीटर लगेगा, हमको भी वहां से 10-15 किलोमीटर लगेगा. पर वो 10-15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने में भाई 2-3 घंटे लग जाते हैं. वो बाद में पता चला था, पहले पता नहीं चला था. पहले तो हम दोनों साथ में पीजीज देख रहे थे और हाउस देख रहे थे, पर फिर ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, तुम वहां रहो, मैं इधर रहता हूँ. बहुत डिस्टेंस था और ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा था. तो इसलिए मैंने पवई एरिया में ही शुरू कर दिया पीजी ढूंढने के लिए. तो एक पीजी मैंने ढूंढ लिया था इनिशियली. तो वहाँ मैंने ठीक है अपना सामान वामान रख दिया, एक दिन रहा, फिर दूसरे दिन पसंद ही नहीं आया तो मैं दूसरे दिन वहाँ से निकल गया. और पवई से फिर मैं अपने एक रिलेटिव थे बोरीवली में, तो वहाँ चला गया था. तो मतलब ऐसा रूटीन हो गया था कि सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे निकलो, तभी मैं इंस्टीट्यूट 9:30 को पहुंच पाता था, क्योंकि बोरीवली टू पवई ट्रैवलिंग डिस्टेंस अराउंड
kilometers wise it is only 19 kilometers, but traveling because of traffic it is around 2.5 hours. तो फिर वहाँ इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था, और मतलब तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है पहले कि अपन को इतना टाइम रखेगा, प्लस और एक बफर रखना पड़ता है कि इतना टाइम तो लगेगा ही उसमें, फिर उस हिसाब से आप अपनी जर्नी को एकम्प्लिश करते हैं. So basically you want अगर बस में जा रहे हैं तो ऐसा होता था. अच्छा, so you basically want लोकल में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था टाइम का. हाँ, बिकॉज लोकल, मेरे रूट में लोकल इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे 3 ट्रेन चेंज करना पड़ता था. कि पवई इज ऑन हार्बर, देन आई वाज इन द वेस्टर्न, बोरीवली इज इन द वेस्टर्न लाइन, सो आई हैव टू गेट द ट्रेन फ्रॉम वेस्टर्न लाइन, देन चेंज फ्रॉम वेस्टर्न टू सेंट्रल लाइन, एंड देन ट्रैवल ऑन सेंट्रल लाइन, एंड देन चेंज फ्रॉम सेंट्रल टू हार्बर लाइन. तो मतलब वो टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाता. एक मिनट, so just to get from your living place to IIT या बाग, I have to change so many stations, calculate करना पड़ता है कि भाई कितना टाइम होगा, बफर कितना लेना है. You have to be good at math, you have to be good at memory, and then you also have to be like कि चलो we finally reached. So it takes that. Oh my God, that means a person who's living in Mumbai has to be calculative and has to have a good memory. Yes, how did you guys? Also a good physics to get into the train. चलती ट्रेन में चढ़ना और उतरना, मतलब दौड़ना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए, और इतने सारे लोग, मतलब एक ही दरवाजे में, मतलब मान लो कि 100 लोग एक साथ जा रहे हैं, तो उसमें आप कैसे अंदर घुस पाएंगे वो आपको भी देखना पड़ेगा. With your bag. और वो भी लैपटॉप के साथ. So then Ahmedabad में obviously we don't, you guys obviously you know there is no such problem in Ahmedabad. No, so it's very easy. Transportation is very easy in Ahmedabad. Wait, so how is that? Like it must be like a shock, culture shock, कि from Ahmedabad to Mumbai. Initially it was, but धीरे-धीरे वो आदत पड़ती गई. हाँ तो हकीकत बात तू કહે છે, બાકી પૂરી નાતે બધાને નહીં ખબર હતી બાત ત્યાં શું કામ થાય છે. અને તું મ્યુટ થઈ ગયો, મ્યુટ છે તું. એક મિનિટ. हाँ, BARC નું full form Bhabha Atomic Research Center. It's located in Manpur area in Mumbai. શું रिसर्च कर रहे हो? और उसका हिंदी बहुत अच्छा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र. और उसका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मोटो, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, वो भी एकदम धड़ाकू. तो इसके लिए उसका वजन पड़ता है ज्यादा. ज्यादातर लोगों ने सुना नहीं था नाम, तो उनको ऐसे समझाना पड़ता था. आपने वो परमाणु मूवी देखा है, उसमें आता है ना जो वहाँ जहाँ से बॉम्ब लाते हैं, वही इंस्टीट्यूट था. वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है, मुझे बाहर ही खड़ा कर दिया, आप अंदर नहीं आ सकते. मेरे पास आईडी था फिर भी नहीं, इंटर्न्स आर नॉट अलाउड. उनको पता है इसको अंदर जाने दिया तो वही के वही ब्लास्ट करवा देगा. नहीं. Talking about life in Mumbai, so from what I understand is like you guys were living there for a year, but it seems very stressful. Was it stressful just moving in and out, even after you get used to it? Was there stress in your life there? नहीं, कुछ स्ट्रेसफुल तो नहीं था, पर शुरुआत के दिनों में हाँ था, 15-20 दिन, क्योंकि लोकल में इतना ट्रैफिक था, आपको जाना है, और कभी कभी एक ट्रेन छूट जाती है तो आपको 4-5 मिनट तक बैठना पड़ता था. फिर अगर उसमें भी ट्रैफिक है तो दूसरी ट्रेन में बैठना पड़ता था, तो ट्रैफिक में जाना पड़ता था. पर अहमदाबाद में तो हम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं, इतने लोग, ज्यादा लोग और भीड़ भाड़, तो थोड़ा स्ट्रगल था, पर फिर हम यूज्ड टू हो गए. ऐसा कुछ था नहीं. निमित्त को बहुत पड़ा क्योंकि उसका वेस्टर्न लाइन से सेंट्रल लाइन में जाना पड़ता था, मुझे ऐसे ही कोई लाइन चेंज करनी नहीं रेलवे. I remember the first day I went to the station at बोरीवली, मतलब ट्रेन लोकल एक आई गई, मैंने छोड़ दी. इतने लोग जा रहे थे, मतलब ऐसा हिम्मत ही नहीं हुआ कि वहां जाओ. फिर दूसरी आई, दूसरी भी छोड़ देनी पड़ी. फिर तीसरी आई, तीसरी भी छोड़ दी. फिर चौथी पे ऐसा लगा अब नहीं जाऊंगा तो टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, तो किसी भी तरह घुस गया. मतलब ये बहुत स्ट्रेसफुल है वहाँ. And talking about Mumbai, Pratyush, for people who don't know, his parents, he used to live there for some time. So you must attest to this, right? Pratyush, what do you say? मैं कैब से ट्रैवल करता हूँ, सॉरी. Right, rich kid life. It's like that joke. It's like the joke Abhishek. बोल ले भाई, बोल ले. कोई बात नहीं, तू बोल. नहीं, अब लड़ लो, एक काम करो तुम लोग. It's almost 5-6 kilometers a stretch.
हाँ हाँ, निमित थोड़ा वहाँ ज्यादा। पे चलता ही नहीं था, वहाँ पे कैब ही लेता था, जैसे ही लोकल से उतरे चलो कैब ले लेते, चलने का बिल्कुल नहीं, क्योंकि शाही निमित है हमारा, उसको ना, परवड़ता लोग ही नहीं इतने चलने थे, को। कहाँ चले रास्ते में, लोग ही इतने हाँ होते थे, ओहो। जगह ही नहीं छोड़ते थे बस चलने के लिए। भाई निमित, तूने बात पकड़ ली मेरी। तो सही बात तो बता रहा हूँ, इतने लोग हैं, मतलब वो कहीं से वो चीटियां निकलती है पता है, जहाँ से वो अरे सही बता, ऐसा मुंबई दूसरा एंड बस किल स्टैंड पे लगता है। ऐसा ही लगता है कि चीटी आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, ऊपर से अगर देखो ना तो ऐसा ही मतलब व्यू रहता है। हाँ। लोकल हम्म। लोकल से एक इंसिडेंट था अखिल का, मतलब हम मिल रहे थे दोनों, शायद हम मिल रहे थे कुल्ला, कुल्ला मिल रहे थे ना, दादर 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 आई थी। दादर दादर मिल रहे थे। तो मेरा ऐसा था कि मैं तो वो वेस्टर्न लाइन में ही आता है दादर, तो मैं तो मुझे एक ही ट्रेन पकड़ के जाना था, पर इसको हार्बर से सेंट्रल में चेंज करना था और सेंट्रल से वेस्टर्न में चेंज करना था। तो ये मतलब भाई साहब तो पहुंच गए, तो मतलब दोनों ट्रेन क्रॉस हो रही थी, इसकी ट्रेन जो आ रही थी और दूसरी ट्रेन जो दादर की तरफ जा रही थी। तो जब भी दोनों ट्रेन एकदम खड़ी हुई और ये ट्रेन, दूसरी ट्रेन जो दादर की तरफ निकलने वाली थी वो निकल रही थी, और इसने मतलब उस ट्रेन में से जंप करके इस ट्रेन में जाने की ट्राई किया, तो रह गया। वहां कोई अंकल थे, उसने पकड़ लिया, वरना तो भाई अपना याद करते अखिल बहुत यार, ऑलमोस्ट के लिए यहाँ ही पे गया था। नहीं होती। नहीं, उसने बहुत डर सामने से हाथ से बोला चल आजा आजा, कुछ नहीं होगा, मैं गया। डर के आगे हाँ जीते मतलब ऐसा भाई। कोई बुला रहा है आजा कुएं में, साथ में कूदते हैं। भाई ने खतरों बुलाया, के चलना तो खिलाड़ी तो है पड़ेगा। ही हम। मजा आएगा मजा। नहीं बाकी उसके 15 मिनट बाद ट्रेन आती थी, इतना कौन वेट करता, और पता है ना मुंबई में सही टाइम बात, जल्दी से निकल जाता सही बात है। यहाँ तो मर जाओ, यहाँ तो ट्रेन का वेट करो। है। हाँ। અખિલ બાર લેબ એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? કેવી હતી લેબ? અહીંયાના આપણે એવું કમ્પેર કરીએ लेग बहुत अच्छा रहा, मतलब एयू से कंपेयर करें तो थोड़ा स्ट्रगल था पहले, क्योंकि पहले तो फोन नहीं था, तो एक लैब से दूसरी लैब जाने में क्योंकि ये मेरी जो लैब थी वो 500 मीटर लंबी थी, तो मैं मटेरियल सिंथेसिस करता था, तो उसका कैरेक्टराइजेशन करने के लिए मुझे 200 मीटर दूर जाना था। तो अगर कुछ भी तुम भूल गए इक्विपमेंट लेना, तो फिर से 200 मीटर जाओ वो लैब में से लेकर फिर से वहाँ पे जाना, और आपको ऐसे फोन भी नहीं कर सकते, सर कर सकते दूसरे को कि ये मेरे लिए ये लेके आ, तो थोड़ा स्ट्रगल तो था। और फिर वहाँ पे एक बायोलॉजिकल लैब रही थी, तो वो लैब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर थी। तो बीआरसी में ऐसे बस आती है, जैसे लोकल ट्रेन 15-15 मिनट में आती है, बीआरसी में एक लैब से तुम्हें दूसरी लैब जानी है तो 15 मिनट में बस आती है, उसमें ही तुम्हें जाना होता है, या फिर चल के या फिर बस। तो बस का वो रूटीन के हिसाब से हमको चलना पड़ता था, तो उस हिसाब से हमको एक्सपेरिमेंट भी प्लान करना पड़ता था, इस टाइम पे बस आएगी, यहाँ पे जाना है, फिर ये 15 मिनट के बाद ये लेफ्ट पे उतरेगी। कभी कभी तो बस चेंज करनी पड़ती थी बीआरसी, एक बस से दूसरी बस, तो वो भी लोकल जैसा ही था बीआरसी कैंपस के अंदर। तो तो थोड़ा स्ट्रगल तो था, क्योंकि एक लैब से दूसरी लैब में, हम एयू में तो बाजू बाजू में थे सब लैब, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं। so Nimit, like last time Harsha Mana, when they came over, they both were in IIT, and you're also one of those lucky people to be in an IIT campus. So they talked about their experience. What about your experience in an IIT campus? एक्सपीरियंस लैब वाइज तो ऐसा था कि हमारी जो लैब थी उसमें ऑलमोस्ट 40 to 45 पीपल्स थे जो काम कर रहे थे। तो ऐसा था, लैब अपने मान लो जो एयू एयू की लैब्स को पहचानते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि जितनी अपनी नीचे माइक्रोबायो लैब है उसको अगर आधी कर दे उतनी लैब थी वहाँ, और उसके अंदर 40 to 45 पीपल्स काम कर रहे थे। तो ऐसा था कि आधे लोग सुबह काम कर रहे थे, आधे लोग शाम को, और आधे पीएचडी वाले तो रात को ही आते थे काम करने के लिए। तो जो मुंबई में इनिशियल स्ट्रगल थी वो जगह की, तो वहाँ लैब में भी वो जगह की दिक्कत तो थी, पर काम वाइज लैब बहुत ही अच्छी थी। जैसे पता है इनिशियली हमको तो ऐसा लगा था कि आईआईटी जा रहे हैं, तो पता नहीं आईआईटी का तो स्टेटस इंडिया में तो बहुत ऊपर आता है, तो एयू से आईआईटी का ट्रांसफॉर्मेशन था वो बहुत ही सही था। मतलब वहाँ हर किस्म के मतलब कितनी भी जानकारी चाहिए थी वो मिल जाती थी इजीली वहाँ, और लैब वाइज भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था काम करने के लिए। और एक एयू और आईआईटी के मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और आईआईटी में चेंज ये देखा कि पीआई का, कि मान लो हम इधर
जो भी अपने पीआई है उनके पास अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो तुरंत चले जाते हैं और उनको पूछते हैं ये प्रॉब्लम है ये है, तो वो तुरंत कहते हैं। पर यहाँ तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपने पीआई से, फिर उसके बाद वो तुम्हें टाइम देता है, तो उसमें मतलब टाइम चला जाता है, तो वो स्टूडेंट अपने आप ही वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। So one thing I want to ask you both is like, now you guys have done your dissertation, your, let's say, like Nimit said, dream to bhai degree mil gaya abhi to. So now you are moving on to the next phase. So but the problem now is with the coronavirus, किसी को पता नहीं, like nobody knows कि भाई apply किया तो भी क्या होगा. So what do you guys think in your estimation? Because I think you're the best people to answer that. Yes, Nimit. I guess हाँ, वो तो सही बात है कि अभी पता नहीं है कब शुरू होगा. At least I have got the admission, but I don't know when I'll start for the new journey. तो पर अखिल शायद शुरू कर रहा है, तो मेरा अभी ओल्ड पे था. हाँ, पर विथ आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस ही होगा. अच्छा, इधर से ऑनलाइन क्लास ही होगा. हाँ, इधर से. I guess online classes will be the new normal. वही ऐसा लग रहा है. That's how it is. क्योंकि even in our own college, after the semester starts, the plan is to have online classes. Then, if things get better, then they want to bring us back to class. So practical work वो सब तो अभी, it's like how do you do it? नहीं, लैब वर्क तो अभी भूलना ही पड़ेगा. लैब वर्क पर सारी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट सोच रहे धीरे धीरे मतलब ये सारे नॉर्म्स के साथ शुरू कर दे रिसर्च एक्टिविटीज. देखते क्या होता है. Because lab work at the same time, research work is being halted as well. People don't understand that, yes, research is still being conducted on the virus and everything, but a lot of workforce is not present. It's not allowed in most universities. So that's also why one of the reasons why you're still suffering, I guess, in my opinion. क्या लगता है? वो तो है ही. मान लो कि मैंने अपनी सेल लाइंस रखी है या कोई एनिमल पे कुछ काम हो रहा है, तो वो सारा काम तो बहुत ही मतलब हिंडर हो रहा है. कई इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि वो सारे एनिमल्स को जितने भी रेड थे या जो भी थे उनको अभी से सेक्रीफाइस कर देना पड़ा, या कोई सेल लाइंस है तो -80 पे रखी है या ऐसा कुछ है तो वो सारे बिगड़ गए, मतलब कंटामिनेशन आ जाएगा. तो ये सारी दिक्कत तो रहेगी जब नए शुरुआत करेंगे तभी. Akhil, your opinion on this? On what? Experience research पे. जयदीप, अखिल, मेरे को एक सीन याद है. तुम ऐसे बता रहे थे कि जब तुम पहली बार क्लास में आए थे तब तुम दोनों साथ में बैठे हुए थे. और कुछ नहीं भाई, कौन सा सीन? पहले दिन पे जेडी बताया नहीं पता भाई. पहले दिन पे साथ में थे ही नहीं हैं. उत्तपम बोला है तो उत्तपम ही होगा. नहीं, मैं क्या बनाऊं खाने में आज? ऑमलेट. नहीं रे, ऑमलेट मैंने सुबह को खा लिया. भिंडी और दूधी है ही नहीं. भिंडी और दूधी, दादू. हाय भिंडी और बेस्ट कॉम्बिनेशन. So, Nimit, I'm pretty sure you must have heard this before. Maybe you even experienced this. Like in most courses, first year is always fun, right? You meet new friends, you have fun, and you will party around, and then after that, especially in a research course, second year hits you hard. It's like, no, this is what you're gonna do for the next rest of your life. You plan on doing it. Why don't you start from there? How was your first year experience in a research course, and how did it go from there till now? So my journey to research was very unexpected. Like coming from a village to a small town to a city and then to a mega city. It was like climbing one step after another. So I never thought of going into the research. After 12th, during the 12th, I decided to pursue MBBS, but could not get into it. Then one of my relative was there here in Ahmedabad University, was pursuing research here. So I got into the college. So initially it was a cultural shock for me, coming from a small town to the city. Like बहुत ही अलग किस्म का एटमॉस्फेयर था इधर.
तो मतलब इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लगा, पर धीरे धीरे सेट होता गया। तो इनिशियली तो ऐसा था कि इधर मतलब रिसर्च वाइज देखने जाए कि कैसे हम रिसर्च में गए, तो वो सबसे बड़ा हाथ उसमें हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पुराने जो धवन सर है उनका हाथ है, और हमारी सारी फैकल्टी का। मतलब इनिशियली वी डिड नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी और व्हाट इज रिसर्च लाइक, पर धीरे धीरे दे गाइडेड अस एंड वी केम इनटू नैरो डाउन करके करते धीरे धीरे इस फील्ड में आ गए रिसर्च में। और बाद में लास्ट ईयर जो डेजर्टेशन था उसको वो बहुत ही मतलब उसका बहुत बड़ा हाथ है ये फील्ड डिसाइड करने में कि हाँ हमें इसी फील्ड में आगे रिसर्च करना है। तो दैट्स हाउ आई गॉट हियर इनटू रिसर्च। I want to ask you both this question because you guys having been through this. Would you recommend the research field to anybody else? Because in my personal opinion, I personally believe that this field is not for everybody. Like, you know, it's rewarding very much so, yes, but it's hard work. It really is. What do you guys think? I would like to say if you want to earn money, this is not the right field. If you want to earn respect, then this is the right field. और रिसर्च में तुम्हें हर रोज कुछ नया करने को मिलता है, मतलब तुम बोर नहीं हो जाओगे एक ही चीज से। तुम जॉब करते हो तो तुम मतलब इट्स डिफरेंट फ्रॉम द 9 to 5 जॉब। यस। सो जो जिन लोगों को वो 9 to 5 जॉब करनी या कुछ पैसे वैसे कमाने, तो उनके लिए रिसर्च नहीं है। वो मार्केटिंग में और उसमें ही रहे, एमबीए कर ले, वही ठीक रहेगा। Speaking of cities, then you moved from a village to the city, right? For me, Ahmedabad honestly was a slight downgrade, and I'm pretty sure Ratish can agree with this as well, because I'm from Chennai, Ratish is from Delhi, so we come from bigger cities. Ratish, how was the shift for you? I want to know that. I actually never asked you this. Now that I think about it. नाइस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे बड़ा छोटा था, मतलब अभी मेरे लिए दिल्ली में डिस्टेंस नॉर्मल क्या होता था 15, 20, 30 किलोमीटर। यहाँ पे 30 किलोमीटर वाज लाइक ओह भाई सिटी चेंज हो जाएगी, इतना दूर मैं नहीं आ रहा। तो ना अजीब है यार, बड़ा अजीब है, क्या चल रहा है पता ही नहीं क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे करके मैं एक्लेमेटाइज हुआ, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर चला और चिपक गया बस। हाँ और मैं अहमदाबाद से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है अभी। हाँ अभी कैसा है कि अहमदाबाद अभी कैसा है, अहमदाबाद छोटा है, ऐसा एक्सेसिबल है सबको, जैसा मतलब तू 2 घंटे में सिटी चेंज करके वापस आ सकता है। No, for me personally speaking, when I first came, yes, it was a shift, and I'm pretty sure I mentioned this before as well. But I do agree with your points that it's quieter here, like that in Ahmedabad. It's much more peaceful. You get to be in your own zone, and I'm pretty sure you know in Mumbai you cannot be in your zone. Like you guys said, you have to keep on running everywhere from here to there. And Delhi, like Pratish said, is a really big city. So in Ahmedabad you get मुंबई में खुद का जोन होता ही नहीं है, मुंबई में दूसरे का जोन होता है, उसमें पैर रख जाते हैं, जगह ही नहीं है भाई। क्या बात की है भाई, क्या बात की है भाई, जगह ही नहीं है। सही बात है। But then speaking of college, like you survived 5 years. I've said survived because yes, it is a survival battle. And Jaydeep has talked about this before. He got into this college because he thought nanotech was cool. And right, Jaydeep? Right. पर मुझे आज तक पता नहीं। I think he didn't know about nanotech in first year. अभी भी नहीं पता भाई, तो क्या फर्स्ट ईयर? नहीं मतलब पहले तुम्हें पीएचडी करनी, देखा जेडी का ऐसा था भाई, मास्टर्स होगा फिर पीएचडी करेंगे, फिर अच्छी सी सैलरी में प्रोफेसर बन जाएगा, डॉक्टर जेडी पिस्टोलिया, फिर उसको अपनी पैशन मिल गई। हाँ फिर मुझे तो भाई सेकंड ईयर से मैं तो फोटा जो था, फोटा मतलब कूल लगता था बहुत ऐसे। But JD told me the story before. Akhil used to go with him, right? You used to go with him for photography as well. Yes. हम सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर जेडी हमने शायद सेकंड ईयर में स्टार्ट किया था। हाँ सेकंड ईयर में जब हमारे वो एंटरप्रेन्योर के लेक्चर शुरू हो गए थे, तभी उसमें रिकॉर्डिंग करते रहते थे। जो इलेक्टिव लेक्चर थे तो एयू की ऐसी पॉलिसी थी कि उसके लेक्चर्स को हमें वीडियो बनाना चाहिए, लेक्चर्स को हमें
उसका रिकॉर्डिंग करना था, तो वहां से हमने धीरे धीरे फोटोग्राफी स्टार्ट की। एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर तो में वहाँ पैसा पे हम भी ही सर कमाते भी थे थे। भाई। एंटरप्रेन्योरशिप के हाँ, लेक्चर और में पैसा हम बाकी ही सब कमाते देखते थे, हम सिर्फ ज्ञान बाकी सब कमाते थे। देखते थे। हाँ, और निमित और हर्ष तुम जाते हर्ष थे ना हर्ष लेक्चर? हाँ। थे। ए તમને ખબર છે આપણે પહેલી વાર કઈ રીતે મળ્યા અખિલ? હા, મને યાદ નથી. આપણે 3 જ હતા આઈ થિંક, નહીં હું નહીં, તું ને નિમિત. હું તને પહેલી વાર છે ને પહેલી વાર પેલા આપણે ઇન્ટ્રો લીધો ને તારું લોકો સેકન્ડ બેન્ચ પર બેઠો હતો, અને જ્યારે તે ઇન્ટ્રો આપ્યો ને ત્યારે જ સમજી ગયો આ ભાઈ કાઠિયાવાડી ઇંગ્લિશ આપણું જ છે, ગુજરાતી મીડિયમ. તો પછી આપણે બીજા કે ત્રીજા દિવસે હું તને વોશરૂમમાં મળ્યો હતો, ત્યારે મેં પૂછ્યું હતું કયું મીડિયમ ક્યાંથી, તે કીધું સુરત થી કાઠિયાવાડી. એ કીધું પતી ગયું, આપણે મેળ ખાયા કર્યો. પછી ઘરના મળી ગયા. હા, ઘરના મળી ગયા. પછી નિમિત્તે બોલે એ આપણી જો ઇંગ્લિશ મીડિયમ પર લાગે નહીં. જબ્બા. જબા. પેલું સેમેસ્ટર તો આપણે હારે પછી દેતો. ત્યારે હું નિમિત ને તું સાથે જ બેસતા. पहला सेमेस्टर तो साथ में ही थे तीनों। वो मॉडल बनाया था कुछ सीसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर एससीसी का। किसको सब बनाया लोग था कल्चरल model? फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे, हम ये मॉडल बना रहे थे। सबसे बेस्ट बना था भाई, सबसे मजबूत, सबसे बेस्ट। कौन सा मॉडल? एफसीसी क्या है ना? हाँ, केमिस्ट्री में वो आता है ना, बीसीसी एफसीसी सीसीसी वो नहीं आता। बीसीसी। कुछ अवार्ड मिला? क्या? नहीं, उसको याद नहीं है। क्या क्लास मिला? प्रोजेक्ट था, उसमें का अवार्ड मिलेगा। अवार्ड ये मिला कि मैम को वो बहुत पसंद आया, मैम ले गए। और मैम अपने घर पे ले गए थे वो स्ट्रक्चर। हमने और की पूरे है क्लास में मेहनत। हमारी तारीफ की थी। वो एक ही प्रोजेक्ट होगा जिसमें जी भर के मेहनत की थी शायद। अरविंद भाई का पॉप और वो दाबेली જોરદાર। दोपहर को એ ખબર છે કેવું થતું, અમે દાબેલી ખાવા જતા તો પેલા દાબેલી ખાઈએ પછી કે તીખું લાગ્યું તો પછી પેલી સ્લાઈસ, ચોકલેટ સ્લાઈસ એક લેવાની અને અડધી કરવાની રોજ રોજનું। ये हमारा लंच। એ અમારો લંચ। हाँ, हम दोनों गए निकले थे डिनर के लिए। एक दिक्कत ये थी, इसके पास सेल फोन रहता नहीं था, तो इसका कांटेक्ट मतलब 7 बजे के बाद ही कर पाते थे, उससे पहले उसका कांटेक्ट ही नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद डिसाइड किया कि मिलते हैं 9 बजे, बांद्रा में कुछ जगह जा रहे थे, तो कोई पब वब था, नाम तो याद नहीं है, पर वो डिसाइड किया कि वहाँ जाते हैं। दोनों पहुंच गए वहाँ। ये भाई पहले ही पहुंच के रिक्शा में से उतर के पहले अपना फोन निकाल के वो मतलब सेल्फी लेने लगा। तो कहाँ चला गया ये? पहले निकाल के सेल्फी लेने लगा अपना फोन, तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने पहले देख के बाहर निकाल दिया कि तुम दोनों अंदर अलाउड नहीं है, निकल जाओ बाहर। तो तुम दोनों बहुत ज्यादा स्टैग हो। हाँ। और जितनी भी जगह इसके साथ गया कहीं भी एंट्री नहीं मिली। ये पता है, ये अकेले की शक्ल पे लिखा है बहुत अकेला। एंट्री नहीं मिलती, मुझे निमित ही लेके जाता था, चलो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो एंट्री मिल ही जाएगी। जितनी जगह में उसको ले गया किसी को एंट्री नहीं मिली। वीकेंड पे तो मैं भी नहीं लैब में जाता था और निमित भी नहीं जाता था, तो हम फ्राइडे रात को ही डिसाइड कर लेते थे कहाँ वीकेंड पे जाना है, और हम ऐसा डिसाइड करते थे कि हमें सिर्फ सैटरडे घूमना है, संडे को सिर्फ आराम करेंगे, थर्सडे सिर्फ सोना ही। तो सैटरडे दोपहर तक तो हम सोते थे, फिर 3-4 बजे निकलते थे, यहाँ पे जाना है तो दोनों पहुंच जाते थे, और एक ही स्टेशन ऐसे डिसाइड करते कि दोनों लोकल से यहाँ पे स्टेशन पे उतरेंगे साथ में जाएंगे। तो निमित बोला कि आज कोलाबा साइड जाएंगे, वहाँ बहुत सारे वो कैफेज है, तो वहाँ पे अच्छा कुछ खाना खाएंगे। तो वहाँ पे हमने 3-4 कैफेज में गए, वहाँ पे स्टेग एंट्री अलाउड नहीं, और रात के बज गए थे 9 या 10, क्योंकि और लोकल हमें मिलती है सिर्फ 12 बजे। तो बहुत दिक्कत हो गई थी, 3-4 जगह गए, बहुत घूमे, मिल ही नहीं रही थी। जैसे ही निमित पूछता था उसका मुंह देख के मना कर रहे, मेरा नहीं तेरा मुंह देख के मना कर। में स्टोरीज बोलते हैं भाई, ये पब में क्लबिंग किए, उसमें ये की, ये भाई ऑसम स्टोरी, ये एक्सक्लूसिव भाई मतलब ऐसा इन लोग की स्टोरी एकदम अलग है भाई, इससे भी निकाला, इससे भी निकाला, इससे भी ऐसे निकाला, भूखे मर रहे थे हम दिया। सड़क पे, ऐसे जा रहे थे, हमें दे दो कुछ खाना, दे दो एंट्री, दे दो यार खाने पीने को कुछ तो दे दो। भाई इतनी बुरी हालत भी नहीं थी। मतलब
असली ऐसा स्ट्रगल तो ऐसा लग रहा यहाँ पर है ही अखिल है, जिस असली तरीके से स्ट्रगल तो है, अखिल जिस तरीके से बोल रहा है ऐसा लग रहा है भाई दर दर भटके खाने के लिए। निमित बेचारा इज लाइक भाई उतना भी बुरा हालत नहीं था, हम तो अच्छे ही थे। निमित साइड से नहीं ब्रो, नहीं नहीं खाना तो मैंने मिल उसके गया। साथ नहीं था, नो ब्रो। पर कोलाबा में ऐसा था कि बहुत चलना पड़ता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम नेट पे देख रहे थे कौन सा कैफे नजदीक में है, फिर वहां से चल के यहाँ पे जाते थे, तो बहुत चले हम, 1 घंटा तो शायद चले थे यहाँ से वहाँ। और वो संडे था, आई थिंक संडे को गए थे ना हम, हाँ संडे को। तो बहुत ट्रैफिक था। पर वो चलना फ्रूटफुल था। मुंबई का फूड बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर स्ट्रीट फूड भी देख ले वो भी हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा जयदीप, तेरे को वो याद है मुंबई की पानी पूरी? याद है भाई, इसको पानी पूरी नहीं बोलते पहली बार। भाई मतलब तो एक पानी के दो पकौड़ी। टाइप होते हैं। हाँ मतलब वो पानी के दो टाइप होते हैं, एक तो एक मतलब नॉर्मल ले ले और एक तीखा ले ले। मुंबई में कैसा है पता है, तू नॉर्मल बोलेगा ना तो इतना तीखा मतलब फट जाए। फिर ऐसे तीखा बोलेगा ना तो तीखा बोलने की हिम्मत ही नहीं होती कि भैया जी तीखा कर। और वहां के आलू में चने ही नहीं। दूसरे दिन याद आता थी पानी पूरी। भाई नल पकड़ना पड़ता है भाई। मतलब ऐसा लगता था पुदीने का पानी नहीं, मिर्च का पानी है। वही सेम मिर्च का ही पानी था वो। और भाई वो शवारमा याद है शवारमा याद है, मीठा शवारमा? अरे भाई क्या अंदर क्या खांड डाली थी क्या? नहीं, हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहता है स्ट्रीट फूड में। कुछ नहीं ये तो वड़ा पाव, वो हाँ, आनंद हमारा वाला खाने वड़ा का, पाव खाने क्योंकि हम गए थे। देख के जाते थे मुंबई में कौन वड़ा सा पाव तो फेमस फूड है। हाँ, हाँ, वहाँ का प्रत्युष कुछ फेमस है वो मिट्टी नहीं, बाई नहीं, पर कॉलेज के उसमें भी बाहर ही। फेमस था ये वाला। प्रत्युष जहाँ रहता है ना वहाँ का मुंबई कुछ अलग है। बहुत ज्यादा। वो बहुत वहां का वो मुंबई बहुत ही दिल्ली बाहर है। रहता है प्रत्युष को मुंबई से। पहली बात तो कुछ पता नहीं था ज्यादा। वो मुंबई वहां का दिल्ली है। मुंबई, हम ओरिजिनल मुंबई एक्सप्लोर करना है तो बांद्रा हम से पूरा लेके रिसर्च कोलाबा करके तक, जाते थे कहाँ खाना है वो सब। उसके बीच में ही ओरिजिनल मुंबई है, बाकी तो ठीक है। हाँ भाई आई लाइक जन्नत जन्नत। ये लास्ट में जो क्लबिंग का और ये पानी पूरी का दिस awesome stories, like क्योंकि you like I said this is like an exclusive thing only which you two must have experienced in history of Mumbai clubbing. I'm not kidding you guys. हिस्ट्री ऑफ नहीं, मुंबई पर क्या? हम गए भी थे 2-3 क्लब, दो बार गए थे शायद, जहाँ हमें एंट्री मिल गई थी सक्सेसफुली। सक्सेस स्टोरी। पर तभी हम ये- ग्रुप में गए थे तो इसलिए मिल गई थी, बाकी तो नहीं मिलती। Honestly, एंड करते हैं, मेरे को खाना बनाने जाना है। ये honestly मेरे को favorite खाना है, अभी बहुत भूख लगा है। एंड करो, मेरे को बनाना है। तू निकल जा, हेलो, पहली हेलो, फुर्सत में हेलो, निकल। हेलो, हेलो। हाँ हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो। but honestly speaking those were my top favorite story of today, like seriously. It's like best stories, but I'd like to end this like therapy session because I feel like people genuinely heard stories which they've never heard before. So I'd like to end this on the fact that what did you guys learn, not just in terms of how you were in Mumbai, but in terms of research field and how Mumbai played a role in that in your life. 2 लाइन में समअप करने के लिए 2 लाइन में बताते हैं तो मुंबई के बारे में देखो तो एक तो टाइम मैनेजमेंट और इतने सारे लोगों के बीच में कैसे काम करते हैं वो सीखा। और इंस्टीट्यूट वाइज, हाँ इंस्टीट्यूट वाइज ये सीखा कि 2-3 नए इंस्ट्रूमेंट सीखे, फिर 2-3 नई टेक्नोलॉजी सीखी, ऐसा। नहीं। अभी ये बराबर है, तुमने क्या सीखा, तुम लोगों को क्या सिखाना चाहोगे इससे, अपने एक्सपीरियंस से? क्या सलाह? बाहर निकलो, घर मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हाँ, ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब जो डेजर्टेशन का एक्सपीरियंस था वो सारे, मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे यूनिवर्सिटी को अपने कोर्सेज में रखना चाहिए कि 1 साल के लिए, अगर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको तो एटलीस्ट रखना ही चाहिए कि 1 साल के लिए किसी को बाहर जाने दे ऐसे रिसर्च के लिए। लर्निंग बहुत बढ़ती है और मतलब उनका थिंकिंग पूरा चेंज होता है, हो जाता है। अलग लोग, अलग लैब, तो कुछ नया सीखने को मिलता है, मजा आता है। हमको तो मजा आया, दूसरों का पता नहीं। हाँ, स्ट्रगल है पर मजा आया।
So basically, move out your Hmm. comfort zone. मतलब हमारे comfort zone से if we know something, move out of it so that you can learn much हाँ. more. I guess that's the Yes, drive yes. point. पहले 1-2 महीने ऐसा होता है, फिर तुमको भी वो नई जगह भी कंफर्ट जोन लगने लगती है, फिर उसको छोड़ने का मन नहीं करता. I निमित think को मन हुआ था छोड़ने का, मुझे तो नहीं करता, मुझे तो मजा आ रहा था फिर वहाँ. पर वो इनिशियली पहले महीने में ही शायद, बाद में तो ठीक है हाँ. हो गया था. हाँ. no, but I think that's a good take-home message. Like explore, keep on exploring in any facet of life. Yes, you guys are researchers, you guys have done a dissertation, but in any facet of life, move away from your comfort zone. See what is possible Mhm. from outside, because our reality is only limited by what we experience. And if we move our experiences outside of our reality changes. So let's say you are in your home, so you only know, okay, so much things done by me, so many things done by my parents or my friends. You move away from that reality. Everything falls upon you. Or rather, maybe even make new friends or new people who you surround yourself with, and that Ah. enhances your experience and makes your life, maybe teaches you much more than you might have expected than before. So I guess that's the big takeaway from this therapy session. I think all of you would agree, wouldn't you? Yes, 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 yes. definitely. That's a very delayed yes, but I'll take it. Anyway,